So, am I audible? Hello. Yes, Okay. So, welcome, guys. Good evening. And today is day 3 of Android development workshop using Kotlin and Jetpack Compose. And my name is Arman. I am the technical team member of Google Developer Student Club of AIKTC. And in past 2 days, we have been learning about Kotlin programming language. And yesterday, we took an overview of what Android Studio is. So basically, Android Studio is a integrated development environment that is used to develop Android application, and Kotlin is a programming language that is also used to develop Android applications. Previously, we used to use Java. Now we use Kotlin. And apart from that, yesterday we also saw some basics of Gradle and Jetpack Compose. So today we will create few basic apps and continue yesterday's learning. So I will go and open my Android Studio. Okay. So this is my Android Studio. This here is menu bar. I am telling this for people who were not present yesterday. This is my menu bar. This is my project root directory of my application. This is version control. This is resource management. All the assets of your application like images, all those things will be managed here. All the icons and images in context of Android development are known as drawables. This is my logcat. This is used for testing purpose. We will learn about this more. This is about problem, means if there are any error in the code, all of those will be listed here. This is app quality insights, basically used to profile your app to see how well it is performing. And this is my inbuilt terminal, and this is also version control. Here we get all the notifications. This is my Gradle. We saw what Gradle is yesterday. So Gradle is basically your assistant that converts your source code into the application that is installed on your mobile phones, Android mobile phones. And this is the list of my emulator. We will also see about this today. And this is the list of the running device that have connected through USB or paired via Wi-Fi. So either you can test your application on the emulator, or you can test your application on real devices through USB debugging or Wi-Fi wireless debugging. Okay. So this is my manifest file. Manifest file basically contains the metadata of your application. Now अब ये metadata क्या है? Metadata basically is data about your data. For example, if you have an image, so the metadata of that image would be the date was captured, its resolution, its size. So this file android manifest.xml contains the metadata of your application. What you are seeing here is a language that is XML. It is quite similar to HTML. XML stands for Extensible Markup Language. If you are familiar with HTML, then this language will also look familiar to you, because the concept of tags that is used in HTML is also used here. So this is my root tag, and under this I have activities. द यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है ना, जितने भी एक्टिविटीज़ आपके जो मोबाइल ऐप के अंदर होंगी, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ दिखेंगी आपको. एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? आप एक टाइम पे जो भी स्क्रीन पे देख रहे होते हो ना, वो एक एक्टिविटी होती. एनीथिंग दैट यूजर सीज फॉर एनी गिवन इंस्टेंस ऑन द स्क्रीन, दैट इज एन एक्टिविटी. And here all the Gradle configuration files are located. This is the project specific Gradle file. It is only one per Android application, एक से ज़्यादा नहीं होगी. और this is module specific Gradle file. Now this will be, जितने मॉड्यूल आपके ऐप के अंदर होंगे, उतनी ये वाली फाइल, उतनी ही फाइल ये आपके ऐप के अंदर होगी. अभी फिलहाल हमारे पास एक ही मॉड्यूल है जिसका नाम है ऐप.
तो इसीलिए हमारे पास एक ही मॉड्यूल स्पेसिफिक ग्रेडल फाइल है, यहाँ लिखा हुआ भी है मॉड्यूल कोलन ऐप। ये बताता है कि ये जो ग्रेडल फाइल है दिस इज अफिलिएटेड विद द ऐप मॉड्यूल, जो ऑटोमेटिकली जब भी आप नया एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ये प्रोगार्ड रूल्स बेसिकली कोड को मिनिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब कंप्रेस करने के लिए, ताकि जो ऐप की साइज़ है वो कम हो जाए। और उसके नीचे बाकी सारी ग्रेडल फाइल्स हैं। इसमें डीप में नहीं जाऊँगा, कल हमने इसको देखे थे। अब यहाँ आते मेन एक्टिविटी में, ये ऑटोमेटिक पहले से ही बनी हुई रहेगी, ये सारा कोड भी उसमें बना हुआ रहेगा। तो जब भी आप एक नया ऐप क्रिएट करोगे तो ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी पहले से रही होगी। सो जो है नाम एक्टिविटी का रहेगा, तो सारी एक्टिविटी जो भी है वो इस वाले पैकेज के अंदर रहेंगी। अब पैकेज क्या होता है? पैकेज बेसिकली कंटेन्स ऑल योर मॉड्यूल्स, सोर्स कोड। बेसिकली जितने भी फाइल्स आप क्रिएट करोगे ना कॉटलिन के, वो सारे com.android. जो भी आपका नेम है उसके अंदर होंगे, तो उसको बोलते हैं हम पैकेज। पैकेज के अंदर होते हैं बहुत सारे सोर्स कोड के फाइल्स होते हैं, जैसे कॉटलिन हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉटलिन रहेंगे। फिर जो भी एक्टिविटी का नाम आप दोगे वही क्लास का नाम रहेगा, और ये एक्टिविटी इनहेरिट कर रही है कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। अब कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एक एक्टिविटी है जिसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे होंगे। ये देखो यहाँ पे ये एक्टिविटी को इनहेरिट कर रही है अपनी मेन एक्टिविटी की क्लास। अंदर आते हैं इसके, एक ऑन क्रिएट मेथड है जो ऑटोमेटिक पहले से बना हुआ रहेगा। थिंक ऑफ दिट एज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर ईच एक्टिविटी। जैसे कॉटलिन के अंदर एक मेन एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से कोड का एग्जीक्यूशन शुरू होता है, वैसे ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ऑन क्रिएट एंट्री पॉइंट होता है। उसको हम एक पैरामीटर दे रहे बंडल, और यहाँ पे हमने ओवरराइड कीवर्ड यूज़ किया है क्योंकि ऐसा ही एक मेथड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर भी है, इसीलिए हम ओवरराइड कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं ताकि कंपाइलर को पता चले कि कौन सा ऑन क्रिएट मेथड एग्जीक्यूट करना। अब मैंने जैसे बताया था कि कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर भी एक ऑन क्रिएट मेथड होगा, इसी उसको हम सुपर कीवर्ड से कॉल करेंगे और उसको हम एक और पैरामीटर दे रहे हैं। अब जो भी आपका UI होगा वो सेट कंटेंट के अंदर आएंगे, इसके अंदर। और UI क्या होता है? एनीथिंग दैट यूजर सीज ऑन द स्क्रीन। जो भी टेक्स्ट, जो भी बटन, अभी गूगल मीटिंग अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे एक रेड बटन होगा एंड कॉल करने का, वो सारा जितना भी कुछ भी देख रहे हो आप वो सब UI होता है। और जितना भी UI होगा आपके ऐप का वो सारा सेट कंटेंट के अंदर आएगा। अभी कंपोजेबल्स के बारे में भी हमने देखे थे कल। कंपोजेबल क्या होता है? स्पेसिफिक एलिमेंट दैट यूजर सीज ऑन द स्क्रीन। अब स्पेसिफिक एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक्स्ट, बटन, टेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, और इमेजेस, कुछ भी हो सकता है वो। ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सब होते हैं कंपोजेबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट यूजिंग जेटपैक कंपोज। अब HTML को इसी चीज़ को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो मेरा रूट निम्बस थीम है। अब आप जब भी ऐप यूज़ करते हो तो उसके अंदर मल्टीपल थीम्स होते हैं, जैसे लाइट थीम हो गया, डार्क थीम हो गया। तो ऐसे ही मेरा एक निम्बस थीम करके मेरा हर एक्टिविटी का जो रूट रहेगा वो हमेशा एक थीम कंपोजेबल रहेगा। अब ये थीम कंपोजेबल कहाँ पे होगा? ये यहाँ से इंपोर्ट हुआ है, बट ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? ये ऑटोमेटिकली बना हुआ रहेगा यहाँ से। देखो बेसिकली ये क्यों यूज़ होता है? लाइट और डार्क मोड के बीच में टॉगल करने के लिए यूज़ होता है। जब भी आप नया ऐप बनाओगे ना तो वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ रहेगा। और ये भी एक कंपोजेबल है। क्यों कंपोजेबल है? क्योंकि इसको यूज़र अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे और अगर डार्क मोड टॉगल करोगे तो इंस्टाग्राम पूरा ब्लैक हो जाता है, वो आपको दिख रहा होता है वो थीम। इसके लिए इसको कंपोजेबल एनोटेशन दिया हुआ है। कोई भी फंक्शन के ऊपर अगर आप ये कंपोजेबल एनोटेशन देखेंगे, @कंपोजेबल जो लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं एनोटेशन। तो कोई भी फंक्शन के ऊपर आप ऐसा कंपोजेबल एनोटेशन देखोगे, उसका मतलब इस चीज़ को यूज़र अपनी स्क्रीन पे देखने वाला। उसके अंदर हमने एक सरफेस कंपोजेबल बनाया हुआ है, मुझे ऑलरेडी बना हुआ रहेगा वो। जब भी आप बनाओगे तब, आप ऐप बनाओगे तब, सरफेस का मतलब एक इज इक्विवेलेंट टू डिवीजन और सेक्शन इन HTML। वही काम यहाँ पे सरफेस करता है। मतलब ये मल्टीपल कंपोजेबल को अपने अंदर आप मल्टीपल कंपोजेबल सरफेस कंपोजेबल के अंदर आप लिख सकते हो। जैसे टेक्स्ट, मल्टीपल टेक्स्ट लिख सकते हो, मल्टीपल बटन लिख सकते हो, तो ये आप करोगे सरफेस कंपोजेबल के अंदर। अब मॉडिफायर बेसिकली यूज टू मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ योर कंपोजेबल। आपको उसकी साइज बदलनी है, उसका बैकग्राउंड कलर बदलना है, उसका अलाइनमेंट, उसकी पोजीशन बदलनी है, शेप बदलना है, तो आप ये मॉडिफायर
को यूज़ करके करते हो। उसके अंदर अभी ये हो गया, उसके अंदर हमने एक ही कंपोजेबल बनाया हुआ है ग्रीटिंग्स करके। ग्रीटिंग्स एक मेथड है, एक कंपोजेबल फंक्शन है ये, जो हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर की। आप देख रहे हो कंपोजेबल एनोटेशन ऊपर लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन जो भी है वो एक कंपोजेबल है और इसको यूज़र स्क्रीन पे अपने देखेगा। अब बिना ऐप रन किए आप इसको कैसे देख सकते हो इस कंपोजेबल को, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं समथिंग नोन एज प्रीव्यू। बिना ऐप को रन किए आप इस कंपोजेबल कैसा दिख सकता है उसको देख सकते हो। उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है डिज़ाइन करके, उस पर क्लिक करना है सिंपली। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, वही यहाँ लिख के आ रहा है, मतलब ये एक प्रीव्यू है आपके कंपोजेबल का। ये पूरा जो कंपोजेबल दिख रहा है ना, टेक्स्ट कंपोजेबल, उसका एक प्रीव्यू है सिंपली। अगर मैं इसका टेक्स्ट बदलता हूँ तो ये भी बदल जाएगा। यहाँ लोड हो रहा है ये, देखो एंड्रॉयड, हेलो एंड्रॉयड हो गया। अब इसका मैं कलर भी बदल सकता हूँ। ये जो काम जो मैं कर रहा हूँ ना, वो क्वाइट सिमिलर टू CSS है। CSS में आप कलर कोलन कलर का नाम डालते हो किसी भी टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए। इसमें भी वही करेंगे, लेकिन कोलन की बजाय हम इज इक्वल्स टू का असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो कलर इज इक्वल्स टू कलर डॉट येल्लो, देखो येल्लो हो गया। अब इसको मैं रेड भी कर सकता हूँ। कलर एक क्लास है, एक स्टैटिक क्लास है जिसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है रेड, और रेड करता है अपने टेक्स्ट का कलर चेंज। अब मैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कलर जो क्लास है वो एक स्टैटिक क्लास है, मतलब वो उसका बिना ऑब्जेक्ट बनाए उस क्लास को, उसकी क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को आप एक्सेस कर सकते हो। अगर इसका साइज बदलना है तो भी आप कर सकते हैं, कोमा फॉन्ट साइज। अब SP का मतलब होता है स्केलेबल पिक्सल। एंड्रॉयड में 2 यूनिट्स होते हैं फॉन्ट साइज को डिटरमाइन करने के लिए, DP और SP। DP का मतलब होता है डेंसिटी पिक्सल, बट गूगल रिकमेंड्स टू यूज SP, ताकि स्क्रीन के हिसाब से और यूज़र के फॉन्ट साइज के हिसाब से अपना फॉन्ट ऑटोमेटिकली स्केल होता है। इसकी मैं साइज़ बदल सकता हूँ, 40 भी कर सकता हूँ। देखो साइज़ बढ़ गई, कम करूँगा तो कम हो जाएगी, देखो कम हुई। अभी ऐप को रन करते हैं हम। सब में पहले हमारा एमुलेटर ऑन होगा। ये जो स्क्रीन पे आप एक फ़ोन का एक रेप्लिका देख रहे हैं उसी को एमुलेटर बोलते हैं। एमुलेटर का पर्पस होता है कि आपके फ़ोन को कंप्यूटर के अंदर सिम्युलेट करे। अब ये हमारा एमुलेटर एक रियल फ़ोन जैसा ही होता है, बट उसका एग्जिस्टेंस वर्चुअल होता है, मतलब वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वो वर्चुअली अपने कंप्यूटर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। एमुलेटर आर मेनली यूज टू टेस्ट योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन विदाउट नीडिंग अ फिजिकल डिवाइस। अब ये एमुलेटर मेरा फ़ोन की तरह ही बूटअप होगा। ये गूगल पिक्सल का एमुलेटर है, इसके लिए यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आ रहा है। अब ये बूट हो रहा है, देखो ये बूट हो गया। होम स्क्रीन पे आए हम। अब यहाँ पे सारे ऐप्स दिखेंगे आपको, एक फ़ोन के जैसा ही ये सेम। अब मैं इसमें अपना ऐप रन करूँगा। देखो देखो ऐप रन हुआ, हेलो एंड्रॉयड यहाँ पे लिख के आ गया। बेसिकली हमने अभी क्या किए, हमारा पहला एंड्रॉयड ऐप बना है। अब मैं इसके अगर फॉन्ट साइज चेंज करता हूँ तो ऐप के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। 50 करता हूँ और फिर से रन करूँगा ऐप को। यहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाएगा, आ गया सक्सेस लिख के। एमुलेटर इज लॉन्च्ड। ऐप को रिस्टार्ट कर सकते। हाँ देखो हेलो एंड्रॉयड लिख के आ गया और टेक्स्ट की साइज चेंज हो गई है। ऐसे ही आपने ऐप के अंदर इमेजेस भी डाल सकते हो। इमेजेस डालने का एक तरीका है, वो सिंपल है। जैसे टेक्स्ट कंपोजेबल यूज़ किया हमने, वैसे ही इमेज कंपोजेबल यूज़ करेंगे।
बट उसके लिए हमें अपने ऐप के अंदर इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं गूगल से कोई भी एक इमेज डाउनलोड करता हूँ आपके सामने। इसको मैं अपने कंप्यूटर पे सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैं देता हूँ रिवर सेव। अब मैं अपने माई फाइल्स में जाऊंगा और ये इमेज को एक्सेस करूंगा। ये रही मेरी इमेज, इसको कॉपी करूंगा। अब पेस्ट कहाँ करना है इसको? पेस्ट करना है आपको रिसोर्स फोल्डर के ड्रॉएबल के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया था, आपके जो भी इमेजेस रहेंगे ऐप के जो अंदर आप जो यूज करोगे, दैट ऑल ऑफ दिस रिसाइड इन द ड्रॉएबल फोल्डर ऑफ योर रिसोर्स फोल्डर डायरेक्टरी। तो यहाँ मैं उसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट हो गई है, देखो इमेज आप देख सकते हो। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो मैं इसको हटा देता हूँ टेक्स्ट कंपोजेबल को और नया कंपोजेबल बनाता हूँ इमेज। इमेज को बनाने का तरीका जो है सिंपल है। एक हमें जैसे हमने टेक्स्ट बने वैसे ही इमेज बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या 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 प्रॉपर्टीज इमेज कंपोजेबल के, तो सिंपली उसके ऊपर होवर करना है आपको। पहले मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। गलत क्लास को इंपोर्ट किया। नाउ इट इज इंपोर्टेड। अब यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टीज दिख रही होंगी, एक है पेंटर और दूसरा है कंटेंट डिस्क्रिप्शन। पेंटर क्या करता है? पेंटर इमेज को लोड करता है और कंटेंट डिस्क्रिप्शन बेसिकली एक्ट एज ऑल्ट इन HTML। अब इमेज में HTML के अंदर आप एक सोर्स स्पेसिफाई करते हो इमेज का और एक ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज करते हो। ऑल्ट के अंदर आप टेक्स्ट डालते हो ताकि अगर किसी वजह से इमेज लोड नहीं होती है तो ऑल्ट का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यूजर को दिख के आता है। तो बेसिकली कंटेंट डिस्क्रिप्शन का काम भी वही है। अब ये जो इमेज डाले थे ना हमने रिवर JPG, इसको हम एक्सेस करेंगे। उसको देखते हैं कैसे करना। एक मेथड कॉल करेंगे पेंटर रिसोर्स, उसको हम सिर्फ आईडी प्रोवाइड करेंगे जो है r.id.river। सॉरी, r.drawable.river। और कंटेंट डिस्क्रिप्शन दे देंगे रिवर। अभी प्रीव्यू रेंडर होगा, इसको रिफ्रेश करते। तो हो गया, देखो इमेज दिख रही है। इमेज दिख रही है, ये प्रीव्यू है। अब मैं जब ऐप को रन करूंगा तो ऐप में हेलो वर्ल्ड की जगह एक ये इमेज दिख के आएगी। इंस्टॉल सक्सेसफुली। देखो इमेज दिख रही है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। बहुत छोटी है, मैं इसको जूम करता हूँ। किसी वजह से जूम नहीं हो रहा हो। This is our image that we just now loaded into our application. अब मैं कल बताने वाला था आपको रोज और कॉलम्स के बारे में। तो बेसिकली रो और कॉलम इज यूज टू ऑर्गेनाइज योर कंपोजेबल्स। तो रो आपके कंपोजेबल को
वर्टिकली ऑर्गेनाइज करेगा, और नहीं, रो आपके कंपोजेबल को हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज करेगा और कॉलम आपके कंपोजेबल को वर्टिकली ऑर्गेनाइज करेगा। हॉरिजॉन्टली मतलब एक लाइन में, और वर्टिकल मतलब एक के ऊपर एक। तो देखते हैं वो कैसे करना है। अब हमने इमेज एक लोड कर लिए, उसके नीचे हम एक टेक्स्ट लिखते जिसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज अ रिवर। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कॉलम। इसके अंदर पहला तो अपना इमेज रहेगा, उसके बाद रहेगा टेक्स्ट, दिस इज अ रिवर। देखो यहाँ लिख के आ गया प्रीव्यू में। अभी ऐप को रन करते, इंस्टॉल सक्सेसफुली। अभी ऐप के अंदर देखते हैं, देखो लिख के आ गया यहाँ पे दिस इज अ रिवर। अभी रिवर, दिस इज अ रिवर में बीच में लिखना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा? टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, और एक चीज़ करनी है हमें, मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। तो क्या देखो बीच में, इसके भी लिए भी हम सेम करेंगे। तो दोनों इमेज और हमारा जो टेक्स्ट है वो बीच में आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉडिफायर एक क्लास है जिसके अंदर अलाइन करके एक मेथड है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज़ किया मैंने क्लास को। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैटिक क्लास है। उसके अंदर अलाइन एक मेथड है, उसको एक मैंने कांस्टेंट पास किया, अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली। इसने क्या किया, इस कांस्टेंट ने बेसिकली मेरे इमेज को वो बीच में ला दिया। अब इसको रन करेंगे, और टेक्स्ट को बीच में करने के लिए टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल्स टू टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, और उसको फिल मैक्स साइज बेसिकली क्या करता है, पूरी विड्थ को कवर करेगा। अगर इसको मैं हटा दूंगा ना तो एक कोने में हो जाएगा वापस। देखो कोने में हो गया। fill max size basically covers your entire parent in this case is column। अब मैं इसको रन करता हूँ, इमेज आ गई अपनी, और दिस इज अ रिवर लिख के आ गया। अभी इमेज को बीच में कैसे लाएंगे? सिंपल है, हमें अपने पूरे कॉलम को बीच में लाना पड़ेगा। कॉलम की क्या क्या प्रॉपर्टी, उसको देखने के लिए आप सिंपली कॉलम के ऊपर होवर करो। देखो कॉलम के अंदर हम 4 उसके पैरामीटर्स पास करते हैं, एक तो मॉडिफायर, दूसरा वर्टिकल अरेंजमेंट, तीसरा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और चौथा कंटेंट। कंटेंट तो हमने इसको ऑलरेडी पास कर चुके, हमने 2 कंपोजेबल एज अ कंटेंट इसको पास किए, और हम इसको बीच में लाने के लिए करेंगे वर्टिकल अरेंजमेंट और अलाइनमेंट। हाँ, अरेंजमेंट और अलाइनमेंट का बीच का डिफरेंस बताना था। तो अरेंजमेंट इज बेसिकली यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर चाइल्ड कंपोजेबल। जो कॉलम के अंदर जो भी कंपोजेबल या रो के अंदर जो भी कंपोजेबल है, उसका अरेंजमेंट चेंज करने के लिए यूज होता है। और अलाइनमेंट में हम पूरे कॉलम को विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट चेंज कर सकते हैं, ताकि सेंटर या फिर हॉरिजॉन्टल सेंटर कर सकते हैं, वर्टिकल सेंटर कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू
इसको क्या पास करूँ? सॉरी, अरेंजमेंट पास करना। ठीक, और यहाँ पे मैं करूँगा सिंपली इसको हटा देता। ठीक, एक और चीज़ करना रह गई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिस्टम यूआई शो सिस्टम यूआई बनाया। शो सिस्टम यूआई बेसिकली व्हाट इट डज इज, आपका जो ऐप के अंदर जो सिस्टम यूआई को पहले क्या होता है वो बताता हूँ। सिस्टम यूआई होता है आपका स्टेटस बार और आपका नेविगेशन बार। जो आपको यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं वो आपका स्टेटस बार है, और नीचे जो आपको बैक होम का बटन दिखता है वो होता है नेविगेशन बार। तो ये जो स्टेटस बार है और वो जो नेविगेशन बार है उसको बोलते हैं हम सिस्टम यूआई। और अगर आपको प्रीव्यू में सिस्टम यूआई देखना है तो बेसिकली आप एक फ्लैग है शो सिस्टम यूआई, उसको ट्रू कर सकते हो। मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। और आपके प्रीव्यू का आप नाम भी दे सकते हो, इसको नेम लिखना है रिवर प्रीव्यू। तो यहाँ पे लिख के आ गया, देखो रिवर प्रीव्यू। इसको अगर मैं हटा दूंगा तो प्रीव्यू का नाम हट जाएगा, मतलब यहाँ पे मैंने इसको कुछ नाम नहीं दिया। यहाँ पे लिख के आ रहे हो मेथड का नाम है ग्रीटिंग्स प्रीव्यू। अब इसके बाद है कॉलम, एक के बाद एक हम इसको कैसे रख सकते हैं। तो एक के बाद एक रखने के लिए कॉलम की जगह आपको लिखना है रो। इसको इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज कॉलम में नहीं चलेंगी। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट है। कॉलम रो में क्या क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट, मतलब इसका उल्टा होता है। इसको हटा देते, ये भी वाली प्रॉपर्टी भी नहीं चलेंगी, तो इसको भी हटा देते। रो कॉलम, ये जो प्रॉपर्टी जो मैं हटा रहा हूँ वो सिर्फ कॉलम में चलती है। ओके, देखो एक के बाद एक आ गए। पहले रिवर की इमेज आई और फिर दिस इज अ रिवर लिख के आया। इसको रन करूंगा, ऊपर जा रहा हूँ किसी वजह से। स्पेसर देता हूँ। स्पेसर इज बेसिकली यूज टू ऐड मार्जिन। स्टेटस बार के पीछे क्यों जा रहा है? इसको छोड़ो। फिर किसी वजह से जो मेरी इमेज है और जो मेरा टेक्स्ट है वो स्टेटस बार के पीछे जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स कॉजिंग दैट, but I hope that you got the idea of what a row and a column is and what the image composable does. Image composable basically adds image to your apps, and text composable adds text to your app. And if you want to arrange your composable horizontally, then you use row composable, and if you want to arrange your composables vertically, then you use column composable. Now what if you want to arrange your composable on top of each other? Then in that case you use box composable. तो इमेज रो की जगह मैं लिखूंगा बॉक्स। इसको इंपोर्ट करूंगा, हो गया इंपोर्ट। देखो अब इसका टेक्स्ट बदलता हूँ ताकि आपको दिखे वो। कलर बदलता हूँ,
color dot white. I hope this is visible to you. देखो इमेज के ऊपर आ गई मेरी टेक्स्ट। इस क्यों? क्योंकि मैंने यूज किया बॉक्स कंपोजेबल का। बॉक्स कंपोजेबल इज बेसिकली यूज टू अरेंज योर कंपोजेबल ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। अब इसकी साइज बढ़ा देता हूं मैं ताकि आपको और दिखे हो। देखो साइज चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने इसको 30 एसपी पास किया। अब इसको 40 करूंगा, 50 करूंगा तो और बढ़ेगी, 60 करूंगा तो और बढ़ेगी, 10 करूंगा तो छोटी होगी। देखो छोटी होगी। तो दिस इज यूज टू बेसिकली अरेंज योर कंपोजेबल्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो हमने देखे अभी रो, कॉलम और बॉक्स। बॉक्स कंपोजेबल इज यूज टू अरेंज योर कंपोजेबल्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। रो का काम है हॉरिजॉन्टली अरेंज करना और कॉलम का काम है वर्टिकली अरेंज करना। स्पेसर इज यूज टू गिव मार्जिन, मतलब एक दो कंपोजेबल के बीच में स्पेस अगर आपको ऐड करनी है तो आप जेटपैक कंपोज के अंदर स्पेसर का यूज करते हो। ये मटेरियल डिजाइन 3 एक डिजाइन लैंग्वेज है, उसका कंपोनेंट है ये। तो मतलब जहां भी आप अगर मटेरियल डिजाइन 3 यूज करते हो वहाँ पे सारे कंपोजेबल आपको दिखेंगे, मतलब ये सारे जो कंपोनेंट्स है ना वो दिखेंगे। फ्लटर में अगर आप मटेरियल डिजाइन 3 यूज कर रहे हो तो वहाँ भी आपको स्पेसर दिखेगा। ये स्पेसर दो कंपोजेबल के बीच में हाइट ऐड करने के लिए यूज होता है। सो ये हम आज ये जो आज का जो कंटेंट है वो है ये सब। रो कॉलम हमने देख लिए, इमेज देख लिए, बॉक्स देख लिए। अब बटन पे आते। तो बटन बेसिकली किसी इवेंट को ट्रिगर करने के लिए यूज होता है। आप कभी कोई ऐप यूज करते हो, उस पर कोई बटन को पे क्लिक करते हो तो उससे कुछ तो इवेंट ऑकर होता है, तो उसके लिए बटन यूज होता है। बटन इज यूज टू ट्रिगर एन इवेंट, और वो इवेंट को ट्रिगर कौन करता है? यूजर ट्रिगर करता है। मतलब आप कोई सेंड मैसेज पे क्लिक करते हो तो सेंड मैसेज क्या है? वो सेंड मैसेज इज अ बटन, and what event it triggers? It sends the message. So sending the message is an event that is triggered by the user through by clicking on that button. So basically that's what button does. और बटन को बना क्रिएट करने का काम भी इजी है। मैं इसको पहले कॉलम करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ ताकि दिखे वो। अब इसके नीचे एक बटन ऐड करता हूँ। अब बटन ऑन क्लिक एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं। मतलब ऑन क्लिक होने पे क्या होना चाहिए? बटन अगर यूजर इस बटन पे अगर क्लिक करता है तो कौन सा इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक को हम पास करते एक फंक्शन पास करते हैं, और बटन की जो प्रॉपर्टीज है आप चेंज कर सकते हो। जो जो देखो ये सब ऑन क्लिक, मॉडिफायर, अनेबल, शेप, ये सारी बटन की प्रॉपर्टीज है। अब बटन के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है तो सेम चीज करना है आपको। एक टेक्स्ट कंपोजेबल को बटन के अंदर क्रिएट करना है ताकि वो दिखे कि बटन का जो टेक्स्ट है यूजर को विजिबल रहे। बटन का कलर बदल देता हूँ। बटन गया किधर? ये रहा बटन। इतना बड़ा आया है, इसको हटा देता।
और बटन की हाइट चेंज कर दी। रैप कंटेंट हाइट और हाइट हो गई चेंज। तो इस पर अगर कुछ क्लिक करूंगा ना मैं, तो एक इवेंट ट्रिगर होगा। अब वो इवेंट किधर लिखना है हमें, इधर लिखना है टू डू के अंदर। फिलहाल एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं हम, उस बटन पे क्लिक होने पे वो मैसेज डिस्प्ले होगा। तो मैसेज डिस्प्ले करना है, यूज़र को एक शॉर्ट मैसेज डिस्प्ले करना है, तो हम टोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, TOAST। इसको इंपोर्ट करते हो। क्यों नहीं हो रहा है? मेरे ऐप के अंदर कुछ तो एरर है, इसकी वजह से वो कॉन्टेक्स्ट को लोड नहीं कर पा रहा। ये ऐप का इशू है, बट आई होप यू गॉट द आइडिया। किसी अगर कोई भी आपको मैं कोई भी एक शॉर्ट मैसेज डिस्प्ले करना है, तो आप टोस्ट का इस्तेमाल करते हो। टोस्ट मतलब एक शॉर्ट मैसेज स्क्रीन के नीचे यूज़र को डिस्प्ले होता है। अब टोस्ट एक स्टैटिक क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है मेक टेस्ट। उसको हम 3 पैरामीटर पास करते हैं, कॉन्टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है वो, और कितने ड्यूरेशन के लिए डिस्प्ले करना है वो, और एक शो मेथड यूज़ होता है कोई भी टोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट को आप अपने असिस्टेंट समझ लो। मतलब कॉन्टेक्स्ट को आपके ऐप के बारे में पूरी जानकारी होती है, कितनी एक्टिविटीज़ है, क्या उसमें रिसोर्सेस है, किसी चीज़ को भी एक्सेस करना है तो आप कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए कर सकते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कॉन्टेक्स्ट के आप बहुत यूज़ करोगे। मतलब आप एक समझो एक ऑफिस है, उसके अंदर एक उस ऑफिस का बॉस है। बॉस को ऑफिस में क्या हो रहा होता है पता नहीं होता, बट उसको कैसे पता चलता है, वो अपने असिस्टेंट को पूछता है कि ऑफिस में क्या हो रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट भी वही असिस्टेंट का काम करता है। आप अपने आप को बॉस समझो ऐप का, और कॉन्टेक्स्ट काम करता है, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली काम करता है असिस्टेंट का। मतलब उसके बाद उसको ऑफिस में जो हो रहा है ना उसके बारे में सब जानकारी होती है। इन दिस केस आर ऑफिस इज आर ऐप। सो बेसिकली टोस्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ शॉर्ट मैसेज ऑन द स्क्रीन। और आपको क्या डिस्प्ले करना है वो सब आप ऑन क्लिक प्रॉपर्टी के अंदर लिखते हो। अब यहाँ पे मैंने ये जो है ना एक करली ब्रेसेस यूज किया है। करली ब्रेसेस का यूज इसलिए किया है ताकि हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं ऑन क्लिक प्रॉपर्टी को, इसके लिए हमने करली ब्रेसेस का यूज किया है। ये एक यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे ना आप, तो जब ये दिस इज अ रिवर बटन पे यूजर जब क्लिक करेगा ना, तो जो भी कोई भी कोड आपने यहाँ पे लिखा है ना ऑन क्लिक के बीच में, वो कोड एग्जीक्यूट होता है। अब और एक कंपोजेबल के बारे में हम देखते हैं जो कि है टेक्स्ट फिल। तो बटन को हटा देता हूं मैं, टेक्स्ट हटाऊंगा तो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है वो हट जाएगा। देखो देखो हट गया। अब बटन हटा देता हूं, टेक्स्ट फिल के बारे में देख रहे। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज है, पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज दिख रही होगी आपको। वैल्यू प्रॉपर्टी बेसिकली कंटेन्स द व्हाटएवर दैट यूजर हैव टाइप्ड
जो भी यूजर ने टाइप किया है वैल्यू के टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट फील्ड के अंदर, वो होता है वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर, तो हमें लिखना होता है वो। फिलहाल मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, हेलो। और वैल्यू ऑन वैल्यू चेंज, जब भी यूजर वैल्यू बदलता है आपके ऐप की, तब क्या इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, तो आप ऑन वैल्यू चेंज के अंदर लिखते हैं। ये ऑन क्लिक जैसा ही है, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको इसको लिखना होता है। अब इधर क्या लिखूं मैं, कुछ भी नहीं लिखता हूँ फिलहाल, बट अब इसको ऐप को रन करके देखते हैं। अभी देखो हेलो पे क्लिक करूंगा तो कीबोर्ड ओपन होगा, देखो कीबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे फिलहाल ये इनिशियल वैल्यू जो आपने इधर हेलो लिखे थे वो प्रिंट हो रही है। अब इसको मैं खाली भी रख सकता हूँ, खाली रखूंगा तो हेलो लिख के नहीं आएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। फिलहाल कुछ भी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ऑन वैल्यू चेंज में कुछ लिखे ही नहीं है। ऑन वैल्यू चेंज में जब तक मैं कुछ लिखूंगा नहीं, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं लिख के आएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्टेट मैनेजमेंट का। अब स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, स्टेट क्या होता है उससे पहले। सो स्टेट बेसिकली a value that any variable or the object holds for any given instant is a state। मतलब state के अंदर समझो एक बुलियन है, बुलियन नाम है समझो अनेबल्ड एक बुलियन करके एक वेरिएबल है, उसके अंदर ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज हो सकती है। तो हर इंस्टेंस पे उसकी क्या वैल्यू है उसको हम बोलते हैं स्टेट। स्टेट इज बेसिकली यूज टू मैनेज द वैल्यू दैट अ वेरिएबल होल्ड एट एनी गिवन टाइम। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यूआई को कैसे चेंज करते हैं उसको बोलते हैं हम स्टेट मैनेजमेंट। आप कोई भी अगर डिक्लेरेटिव फ्रेमवर्क यूज करते हो, जैसे रिएक्ट हो गया, फ्लटर हो गया, जेटपैक कंपोज है, उसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है कि उसके इट इज यूज टू बेसिकली मैनेज द स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन, एंड स्टेट इज एनी वैल्यू दैट अ वेरिएबल होल्ड्स फॉर एनी गिवन टाइम। तो यहाँ पे एक चीज ईट कीवर्ड, एक ईट कीवर्ड है, उससे उसके अंदर जो भी वैल्यू यूजर टाइप कर रहा है ना वो रिटर्न करता है। मतलब ईट कीवर्ड क्या करता है, मैंने अगर समझो टेक्स्ट फील्ड के अंदर हेलो टाइप किया तो बेसिकली ईट कीवर्ड विल रिटर्न मी दैट वैल्यू। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे। अब हम स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ आपको, वैर वैल्यू। अब स्टेट मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो उसका जो तरीका है वेरिएबल बनाने का, उस केस में वो थोड़ा अलग है ट्रेडिशनल केस के मुकाबले। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वैर कीवर्ड या वैल कीवर्ड यूज़ करते हैं, स्पेस वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू जो भी इनिशियल वैल्यू वो दे देते हैं हम। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम अलग तरीके से वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो अब तक तो सेम था, वैर कीवर्ड यूज़ किया, वेरिएबल का नाम दे दिया। अब रिमेंबर यूज़ करूँगा मैं, बाय म्यूटेबल ऑफ, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ, इसको भी इंपोर्ट करता हूँ। अब आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। बटन को हमने देख लिए, टेक्स्ट फील्ड देखे, हाँ, वेरिएबल का नाम आपके जो भी वैर कीवर्ड, वेरिएबल का नाम, बाय कीवर्ड, रिमेंबर एक कीवर्ड है उस वो, और जो भी एक म्यूटेबल स्टेट ऑफ एक मेथड है वो, और उसके अंदर आपको जो भी इनिशियल वैल्यू देनी होती है वो, इनिट स्टैंड्स फॉर इनिशियल, मतलब जो भी इनिशियल वैल्यू देनी है वो इसके अंदर आता है। अब मैं इनिशियल वैल्यूज को क्या दूं, इनिशियल वैल्यू देते इसको हाई, और वैल्यू ये वाला वेरिएबल यूज कर रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू इट के बारे में मैंने आपको बताया था। इट बेसिकली रिटर्न्स द वॉट एवर दैट यूजर टाइप्स इन योर टेक्स्ट फील्ड इज बेसिकली रिटर्न बाय इट कीवर्ड। और एक मेथड देना इसको।
ट्रू। कहाँ गए? कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा? सो आई होप यू अंडरस्टूड। मेरा वर्चुअल कीबोर्ड है ना जो एमुलेटर का, काम नहीं कर रहा। क्लिक कर रहा हूँ मैं, बट यहाँ कुछ आ नहीं रहा लिख के। बट आई होप यू अंडरस्टूड। टेक्स्ट फील्ड इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले अ टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड मतलब क्या? उसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं और उसके अंदर उस 3 पैरामीटर प्रॉपर्टीज को हम असाइन करते हैं। जो वैल्यू, जो करंट वैल्यू वो होल्ड करेगा। अब समझ में क्यों नहीं कर रहा था वो, इसके लिए नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या इशू था? कीबोर्ड तो चल रहा है ठीक से, बट जो वैल्यू जो डिस्प्ले होनी चाहिए टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो हम चेंज ही नहीं कर रहे थे। वैल्यू तो ये जो वैल्यू कीवर्ड है, ये जो वैल्यू वेरिएबल है वो तो चेंज हो रहा था, बट टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि हमने उसको ऐसा करके रखे थे। तो यहाँ पे अगर जो भी लिखूंगा ना सिर्फ वही डिस्प्ले होगा, उसके अलावा कुछ नहीं डिस्प्ले होगा। तो उसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे असाइन करूंगा वैल्यू को। तो हमने यहाँ पे क्या किए, वापिस बताता हूँ। वैर कीवर्ड, वेरिएबल का नाम, बाय कीवर्ड, रिमेंबर, म्यूटेबल स्टेट ऑफ। अब मैं अगर इसको हटा देता हूँ सबको और एक ट्रेडिशनल सेंस में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ हेलो, तो देखो कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो टेक्स्ट फील्ड पूरी हट गई। क्यों ऐसा हुआ? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो वेरिएबल है ये एक ट्रेडिशनल वेरिएबल है, इसको कंपोजेबल जो है वो रिमेंबर नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हो आपका ऐप कोई वेरिएबल को रिमेंबर करे, उसको ऑब्जर्व करे, ताकि उसको पता रहे कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और इसकी वैल्यू चेंज होने की वजह से मेरे को अपना ऐप को चेंज, ऐप के अंदर यूआई को चेंज करना है, तो हम यूज करते हैं वैर, वेरिएबल का नाम, बाय, रिमेंबर, म्यूटेबल स्टेट ऑफ और उसके अंदर इनिशियल वैल्यू। ऐसा अब जो इनिशियल वैल्यू दोगे उस पर डिपेंड करता है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रहेगा। अगर मैं इसको इनिशियल वैल्यू को मैं अगर 1 देता हूँ तो वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा इंटीजर। अगर वहाँ पे ट्रू या फॉल्स देता हूँ तो वेरिएबल का टाइप बन जाएगा बुलियन। ऐसा इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड इज बेसिकली टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। आपने गूगल फॉर्म भरा होगा, वो सब के लिए उसमें जो आप टाइप करते हो कुछ भी, वो क्या होता है? वो होता है टेक्स्ट फील्ड। जेटपैक कंपोज में उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। एक्सएमएल के केस में हम उसको बोलते थे एडिट टेक्स्ट। अब एक और होता है, इसको देख लिया हमने। सो आई थिंक वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस कंपोजेबल। हमने रो और कॉलम देख लिए। अब यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो, रो बेसिकली अरेंजेस कंपोजेबल हॉरिजॉन्टली, कॉलम अरेंजेस all are composable vertically. Image is composable is used to display image in our apps. Box composable is basically used to stack all are composable on top of each other. Button composable is used to trigger a button. Text field composable is used to take the input from the user. And state is used to manage the state of your application. So basically change the UI based on how user interacts with it. अब एक डाइस ऐप बनाते हैं, मतलब बटन पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो फोटो चेंज होगी। तो यहाँ पे एक बटन लेता हूँ मैं, टेक्स्ट फील्ड हटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। बटन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में एक कुछ तो चेंज करेंगे हम, कुछ तो ऐसा लिखेंगे जिससे एक इवेंट ट्रिगर होगा और उससे हमारी जो इमेज है वो चेंज होगी। तो पहले एक मैं बना लेता हूँ एक रिमेंबर ताकि जेटपैक कंपोज, एक वेरिएबल जिसको जेटपैक कंपोज रिमेंबर कर सके। तो वैर क्या लूँ उसको, इमेज बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ।
इसको हटा देता हूँ। इमेज है तो इसको इंट 0 दे देता हूँ। अब बटन ली, उसके अंदर मैं बटन के अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट स्ट्रिंग, लिखूंगा क्लिक मी, यहाँ आ जाएगा लिख के, देखो क्लिक मी लिख के आ गया। अब मेरे को हम एक डाइस ऐप बना रहे हैं, तब इस बेसिकली ऐप, इसके ऐप के अंदर होगा क्या, जब भी यूज़र बटन पे क्लिक करेगा ना तब जो डाइस है ना वो चेंज होगा, मतलब 1 2 3 डाइस के अंदर 6 पॉसिबिलिटी होती है, 1 to 6, तो बेसिकली वो चेंज होगा। तो इसके लिए मैं डाइस की इमेजेस लोड करता हूँ फट से ऐप के अंदर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक जिप फाइल डाउनलोड करके रखा हूँ जिसके अंदर मेरी सारी डाइस की इमेजेस है। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको सबको कॉपी करेंगे। प्रोसेस सेम है हर इमेज के लिए, ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 पेस्ट कर दिए, यहाँ पे इमेज आ गई। ये देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6। अभी जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो बेसिकली हमें करना क्या, हमें इमेज की वैल्यू बदलनी है ताकि उस बेसिस पे जो इमेज है हमारी वो चेंज होती रहे। तो वो कैसे करेंगे, हमने पहले दिन देखा था वैन के बारे में। तो वैन क्या करता है, वैन बेसिकली जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्विच होता है वही कॉटलिन के अंदर होता है वैन। तो और एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, उसको बोलते हैं वैर रिजल्ट बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ। अब वैन रिजल्ट इज इक्वल्स टू, सिंटैक्स क्या था उसका, वैन। तो रिजल्ट वैन एक कीवर्ड है जो बेसिकली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्विच होता है वही काम करता है वैन। अब हम बेसिकली जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा बटन पे, तो जब भी वो बटन पे क्लिक करेगा ना तब हम इमेज को चेंज करेंगे। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। एक चेंज करना है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इमेज को चेंज, और यहाँ पे बेसिकली मेरे को डालना है r.drawable.dice1, इसी को सबको कॉपी करना है नीचे। मैं समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमने दो वेरिएबल बनाए, उसको हम बोले जेटपैक कंपोज को रिमेंबर करने के लिए, और इमेज की वैल्यू हम चेंज करेंगे रिजल्ट के बेस पे। तो जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो जो वैल्यू चेंज होगी रिजल्ट की, उस बेसिस पे हम चेंज करेंगे इमेज की वैल्यू को। समझ रहे हो आप। एक वेरिएबल बनाया मैंने जिसका नाम है इमेज, उसको मैंने बोला जेटपैक कंपोज को कि तू भाई इसको याद रख, ये इमेज इसकी जब वैल्यू चेंज होगी तो तेरे को यूआई को चेंज करना है। दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने रिजल्ट, उसको भी बोला मैंने जेटपैक कंपोज को कि कीप एन आई ऑन दिस वेरिएबल, और वो है रिजल्ट इज गोइंग टू बी आर इंटीजर ऑल्सो। तो इसको मैं कर देता हूँ 0, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे इंट। दूसरा वेरिएबल बना है हमने जिसका नाम है रिजल्ट, उसको बोले जेटपैक कंपोज को तू इसको याद रख, और जो रिजल्ट की वैल्यू होगी, जो 1 to 6 के बीच में जो रिजल्ट की वैल्यू होगी, उस बेसिस पे हम इमेज की वैल्यू को चेंज करेंगे। समझ रहे हो आप। रिजल्ट की वैल्यू जो होगी चेंज होगी, उस बेसिस हम इमेज की वैल्यू चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, वैन का यूज़ करके। वैन इज बेसिकली
स्विच इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब अगर वैल्यू 1 होगी तो आर डाइस 1 रिटर्न होगा, अगर रिजल्ट की वैल्यू जब 2 होगी तो डाइस 3 रिटर्न होगा। इसको मैं सॉरी 1 2 3 करता हूँ, 3 4 4 5। ओके, अब समझ में आएगा आपको अच्छे से। जब रिजल्ट की वैल्यू 1 है तब डाइस 1 रिटर्न होगा। डाइस 1 क्या है, ये डाइस 1 की इमेज रिटर्न होगी। जब रिजल्ट की वैल्यू 2 है तब डाइस 2 रिटर्न होगा। जब 3 है तब 3, 4 तो 4, 5 तो 5। अगर 1 to 5 में से कुछ भी नहीं है मतलब 6 है। 6 ही पॉसिबिलिटी है अपनी, 1 2 3 4 5 6। अगर 1 2 3 4 5 नहीं है तो बचा क्या, 6, तो 6 रिटर्न होगा। तो मतलब डाइस 6 की फोटो रिटर्न होगी जो यहाँ पे ये। अब मैं जब ऐप रन करूंगा ना कुछ भी नहीं होगा, देखो क्लिक मी पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं ऐसा हो रहा, क्योंकि मैंने जो है ना ऑन क्लिक उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं। तो कैसे करूँगा, रिजल्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रैंडम फंक्शन है जिसको हमने एक रेंज दिए 1 to 6, और ये रैंडमली इस रेंज में से कोई भी वैल्यू पिक करेगा और रिजल्ट को असाइन करेगा। यही चेंज हो रहा है। और यहाँ पे पेंटर, यहाँ पे इसको मैं चेंज करता हूँ आईडी को, इसको दे देते हैं हम इमेज। ठीक है, ऐप को वापस से स्टार्ट करता हूँ मिनिमाइज करके। देखो चेंज हो रही है इमेज, क्लिक मी 3 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ। देखो रैंडमली चेंज होगी, जब भी मैं बटन पे दबा रहा हूँ ना रैंडमली इमेज चेंज हो रही है। अब मैं इसमें अगर ये वाली जो कोड को हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट के बारे में बताया था, एनीथिंग दैट्स कमेंटेड विल बी इग्नोर्ड बाय आवर कंपाइलर। फिर रन करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। देखो क्यों ऐसा, क्योंकि ऑन क्लिक के अंदर मैंने कुछ है ही नहीं ऑन क्लिक के अंदर। अब इसको वापस को कमेंट को हटा दूंगा मैं, फिर रन करूंगा। ऐप को रिस्टार्ट करूंगा, अब चेंज होगी। देखो वैल्यू, देखो चेंज हो रही है, इमेज चेंज हो रहा है ऊपर। क्यों ऐसा, क्योंकि पहले ऑन क्लिक के अंदर कुछ भी नहीं था। अब एक कोड, एक लॉजिक है, एक कोड है जो एग्जीक्यूट हो रहा है जब भी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तब। अब स्टेट के बारे में आपको बताता हूँ। और अगर मैं जो रिजल्ट की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, अब बाय रिमेंबर अगर हटा देता हूँ मैं और इसको उसकी जगह पे मैं देता हूँ 0, तो देखो इमेज चेंज नहीं होगी। देखो इमेज में बटन पे क्लिक कर रहा हूँ बट इमेज चेंज नहीं हो रही है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टेट, रिजल्ट का जो स्टेट है वो मैनेज नहीं कर रहा हूँ, स्टेट मैनेजमेंट नहीं कर रहा हूँ। स्टेट मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली is used to change the UI of the app based on what value a variable holds at a given instance of time। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ रिमेंबर म्यूटेबल इंट स्टेट ऑफ, मतलब जेटपैक कंपोज इसकी वैल्यू की चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। ऑब्जर्व अगर नहीं कर रहा है तो यूआई अपडेट कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं कि इस वैल्यू को ऑब्जर्व करना है, और अगर इसकी वैल्यू अगर चेंज होती है तो मेरे को यूआई को अपडेट करना है। इन दिस केस मेरे को इमेज को अपडेट करना है, इसीलिए स्टेट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी, ताकि आपका यूआई अपडेट हो सके। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका यूआई अपडेट ही नहीं होगा। तो मैं उसको वापस से वैसा था वैसा करता हूँ और वापस रन करता हूँ। देखो अब इमेज चेंज होगी। क्यों ऐसा, क्योंकि जेटपैक कंपोज रिजल्ट की वैल्यू को चेंज, जब भी चेंज होगी तब भी यूआई को अपडेट करेगा। देखो इमेज चेंज हो रही है।
So this was our basic game. Whenever user clicks on the button, the image changes. Any random, we pick any value, random value from 1 to 6, and based on that value, we change the image. Now right now the value is 1, इसीलिए यहाँ पे 1 डाइस बनी हुई है. फिर कोई एक रैंडम वैल्यू क्लिक करूंगा तब होगी 2 हुई, फिर करूंगा तो 1 हो गई वापस से, फिर क्लिक करूंगा 1 हुई, फिर 6 हुई. ऐसा एज बेस दिस वॉज ऑल आर बेसिक डाइस ऐप. एक गेम था ये डाइस ऐप, जिसको हमने अभी जस्ट कोड किया साथ में. इट्स 8:10 right now. We will take a 10 minutes break and after that we will create a list. So basically जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो और स्क्रॉल करते हो, वो क्या है, वो एक लिस्ट है. वही हम अब ब्रेक के बाद बनाएंगे. हम 10 मिनट का भी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लिस्ट बनाते हैं.
So welcome back, guys. So I told that we will make a list, but we are going to do that tomorrow. Today we are going to make a tip calculator, a app that calculates tip. So basically, when you go to restaurant, you pay bill and you pay tip on top of that. So what our app will do is it will add the total amount plus tip and display it on the screen. This we are going to make a tip calculator app. So what our app will contain is it will contain a button, two text fields, and the text where we will display the result. What our total sum is. I will share my screen. Okay. Is my screen visible? Hello. Yes. So let's get rid of this image. We'll keep the button. I will introduce a new text field. I've changed the background to black so that it's more visible. And one more text field below that. Okay. Now I will get rid of all of this. Now we will have three variables. In one variable, we will store what is the value of the first text field. In second variable, we will store what is the value of second text field. And in third variable, we will basically store the total amount. So let's create all those three variables where, like I said, result, then where uh, dinner amount, and where tip amount. Okay, so I have declared a three variable and I am telling our app to remember all these three variables. So whenever these three variables change, the value of these three variables change, our UI will change accordingly. So I have taken two text fields here. Now what I will require is one text button. Text. Hmm. So what will be the value of our first text field? Dinner amount. What will be value of our second text field? Tip amount. And this will be total. Total amount. Dot to string. So basically I'm converting this integer value to a string value using this toString method. Now in this, here we will write the logic of what will happen whenever the value of our text field changes. So when we will first change the value of, we will dinner amount is equals to eat, then tip amount is equals to eat, one more enabled is equals to true.
And we will make a method that will be this will basically calculate our the sum of our dinner amount and tip amount. So basically, the dinner amount and tip amount will be the total amount that the customer in the restaurant will pay to the restaurant after his dinner is over. So I will make a new function here. I told you on first day how to create a function. Fun calculate total. We'll pass two parameters to it. First is dinner amount, second is tip amount, and it returns the total amount. That is dinner amount plus tip amount. And here, whenever the user clicks on the button, total amount is calculated. Okay. Hmm. So I have first text field here, I have second text field here, I have button here, and below that button the total amount is displayed. Total amount is equals to total amount. See. So whenever user will enter the dinner amount here, user will enter the tip amount here, and whenever this button is clicked, the total amount from will be calculated by this method. By this function. Our total amount will be dinner amount plus the tip amount. Let's run this. Okay. Now let's use our logcat because our app crashed. So on in the beginning of this session, I told you that we will be using this logcat. So logcat is used to display the logs of your application. Whatever that's happening in the background will be shown here. All the errors, every event, everything that's happening will be shown here. Now we have gotten one error. Let's try to fix it. So this is our error message. It says number format exception. Now what is a number format exception? Number format exception basically means we are trying to calculate string. Addition is used to perform on integer variables, but we are trying to calculate the sum of string variables. We cannot calculate the sum of string variables. We can only calculate the sum of either integer variable, float variable, or decimal variable. That's the reason why whenever I try to change value, our app crashes. And that message is displayed here. There. This is our error message for input string IO.
So what change we can make? We will convert our method into convert our variables into int string. Now whenever I try to input a value, it won't crash. See, it's not crashing. Why? Because I'm not trying to calculate the sum of string. So let's handle this click event. So I will uncomment this. Now we have an error here. Let's see what it says. Type mismatch. It requires integer type, but what we are providing is string type. So let's change this to string. Simple. And we will introduce a new variable here where sum is equals to 0. Sum is equals to okay. So what we did here, we introduced a new variable, then we added the dinner amount to our sum variable, then we added the tip amount to our sum variable, then we returned that amount. Let's change this to string also. Let's make this to string. Okay, all our errors are gone. Now app should run fine. If it throws any error, we will also handle it. 12, 12. See, it calculates the sum. 1212 plus 12 is 1224. So basically what we did here, whenever user enters the input here, the dinner amount, then another input here, which is the tip amount, and whenever the user clicks on click me, sum is calculated of both of these values. So if I change to it to 800, it will add 1212 plus 800. See, 2012. If I change this value, see, it calculates another sum. Now I will explain you the code. So we introduced or declared three variable, and we told our application to remember the value of these three variable. I told you about this concept which is known as state management. State management करता क्या है? वेरिएबल की एक वैल्यू को ऑब्जर्व करता है और जब भी वो वैल्यू चेंज होती है अपने यूआई को चेंज करता है। और यूआई क्या होता है? यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस। मतलब एक ये पूरा करियर है, ऐप कैसा दिखेगा, उसका क्या डिजाइन रहेगा, उसका क्या पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो भी है वो कैसे दिखेगा, उसको एनिमेशंस क्या रहेंगे, इमेजेस क्या रहेंगे, बट जो कंपोजेबल है वो कैसे अरेंज होंगे, वो सब यूआई के अंदर आता है। यूआई का एक बहुत ही फेमस टूल है फिग्मा, तो उसको यूज करके ऐप का यूआई बनता है। यूआई का भी एक वर्कशॉप होगा जो हमारी जीडीएससी की लीड लेने वाली है बहुत जल्द, तब आप वहां सीखोगे यूआई यूएक्स डिजाइन। उसको इतने डीप में नहीं जाऊंगा, बट यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस। वॉट एवर यूजर सीज ऑन द स्क्रीन इज बेसिकली यूआई ऑफ योर एप्लीकेशन। सो हमने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किए यहाँ पे। हमने अपने ऐप को बोले इन वेरिएबल की वैल्यू को रिमेंबर करना है, ताकि जब भी ये वैल्यू चेंज होगी हमारा यूआई चेंज होगा। मतलब यूआई क्या चेंज हो रहा है? हमारा अमाउंट चेंज हो रहा है। जब भी मैं यूजर क्लिक कर रहा है अमाउंट पे तो हमारा अमाउंट चेंज हो रहा है। अब अगर मैं रिमेंबर हटा देता हूँ
सिर्फ इज इक्वल्स टू 0 करता हूँ तो देखो क्या होता है। ऐप को रिस्टार्ट करता हूँ, यहाँ डालता हूँ पहली वैल्यू। देखो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्यों चेंज नहीं हो रही? चेंज हो रही है वो वैल्यू, बट यूआई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा ऐप पे वो वैल्यू की चेंज को रिमेंबर नहीं रख रहा और उस हिसाब से यूआई को अपडेट नहीं कर रहा। इसीलिए हम यूज करते हैं बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, बेसिकली यूज टू मैनेज द स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन। कंट्रोल जेड करके मैं पीछे जाता हूँ और वापस ऐप को रन करता हूँ। अभी देखो वैल्यू चेंज होगी। देखो चेंज हो रही। अब यहाँ मैं कुछ कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, से 900,000, यहाँ डालता हूँ 1,000। अभी 10,000 इसका सम आना चाहिए। देखो आ गया 100,000। अब अगर मेरे को ये तीनों के बीच में स्पेस डालनी है तो मैंने पहले बताया था, अब हम स्पेसर का यूज करते हैं। इसको इंपोर्ट करता हूँ, इसको इंपोर्ट करता हूँ। देखो बीच में स्पेस आ गई। अगर मैं इसकी साइज को चेंज करूंगा, लेट से 100 डालता हूँ, देखो स्पेस बढ़ गई। कम करूंगा 10 करता हूँ, स्पेस कम हो गई। फिलहाल हम इसको रखते हैं 50। इसी को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ भी डालूंगा और यहाँ भी डालूंगा। नाउ लेट्स चेंज द साइज ऑफ आवर फॉन्ट। वो कैसे करना है बताया था मैंने आपको। फॉन्ट साइज ट्रेड एसपी, एसपी को हम इंपोर्ट करते हैं। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। रन कर। देखो स्पेस आ गई बीच में, अपना फॉन्ट चेंज हो गया। अब मैं यहाँ डालता हूँ कोई वैल्यू को 450, 8787, क्लिक। देखो 537 टोटल लिख के आ गया। फॉन्ट ज्यादा बड़ा है इसके लिए ओवरलैप हो रहा है। अब इसको कैसे चेंज करना है? लाइन हाइट की मदद से हम चेंज कर सकते हैं ताकि टेक्स्ट एक के ऊपर एक ना आए। वो सेम है उसका सिंटैक्स भी, कोमा लाइन हाइट। इससे क्या होगा मालूम है? जब भी टेक्स्ट एक के नीचे एक लिखा रहेगा, जैसे पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में बहुत सारी लाइन होती है जो एक के ऊपर एक लिखी होती है। उन पैराग्राफ उन लाइंस के बीच में हमें अगर स्पेसिंग डालनी है तब हम यूज करते हैं लाइन हाइट का। ये देखो लाइन हाइट फॉर पैराग्राफ, मतलब अगर एक के नीचे एक अगर टेक्स्ट लाइन लिखी हुई है तो उनके बीच में अगर हमें स्पेसिंग डालनी है तब हम यूज करते हैं लाइन हाइट का। अब मैं बता रहा था आपको ऐप के बारे में, ये इस ऐप के बारे में, टिप कैलकुलेटर के बारे में। तो ये टेक्स्ट फील्ड है, ये कॉलम है। कॉलम के बारे में आपको बताया मैंने, इट इज यूज टू अरेंज कंपोजेबल्स वर्टिकली, एक के नीचे एक। ये मॉडिफायर है, मॉडिफायर इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब सारे जो कंपोजेबल है उसको बीच में करेगा ये। वर्टिकल अरेंजमेंट सेंटर मतलब ये जो दिख रहा है आपको वो सेंटर में आएगा, जैसे ऐप में दिख रहा होगा आपको। देखो ये सब सेंटर में आया, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ऐसा क्यों? इन दो प्रॉपर्टीज की मदद से। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल अरेंजमेंट इज अरेंजमेंट सेंटर। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाए, उसके अंदर यूजर डिनर अमाउंट को इनपुट करेगा। फिर वो दूसरे टेक्स्ट फील्ड के बीच में हमने स्पेस डाले। उसके बाद दूसरी टेक्स्ट फील्ड बनाए, उसके अंदर यूजर टिप अमाउंट को एंटर करेगा। फिर स्पेस डाले, फिर एक बटन क्रिएट किए। बटन बेसिकली क्या करता है? एक इवेंट को ट्रिगर करता है।
तो उसका लॉजिक हमें कहाँ लिखना होता है, ऑन क्लिक के अंदर। ऑन क्लिक के अंदर हम लॉजिक लिखते हैं बटर को ट्रिगर करने का, सॉरी इवेंट को ट्रिगर करने का। हम्म। और इसमें इवेंट क्या है, इवेंट है टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना। तो टोटल अमाउंट एक वेरिएबल लिए थे जिसको हमने ऑब्जर्वेबल किए थे, वो यहाँ पे उसके उसके जब भी यूजर क्लिक करेगा तो एक फंक्शन कॉल होता है जिसको हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, डिनर अमाउंट, टिप अमाउंट। वो डिनर अमाउंट, टिप अमाउंट जो भी यूजर ने इनपुट किया वो नीचे आएगा यहाँ पे। फंक्शन का नाम है कैलकुलेट टोटल। ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखे। एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है सम। इसको हम ऑब्जर्वेबल नहीं रख रहे, रिमेंबर नहीं कर रहे क्योंकि जरूरत नहीं है रिमेंबर करने की। इसके अंदर पहले हमने ऐड किया डिनर अमाउंट को, फिर ऐड किया टिप अमाउंट को। अभी टू इंट क्यों कर रहे हैं हम, सम कैलकुलेट होता है इंटीजर्स के बीच, स्ट्रिंग्स के बीच में नहीं। और स्ट्रिंग यहाँ पे हम पैरामीटर आ रहा जो है वो स्ट्रिंग है, तो इसीलिए स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम टू इंट यूज करते हैं। अब इंटीजर को अगर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम टू स्ट्रिंग यूज करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि जो सम है वो इंटीजर है, और इंटीजर हमें रिटर्न नहीं कर रहा, उसकी जरूरत नहीं, हमें हमें जरूरत है स्ट्रिंग की। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई भी किया हुआ है किस तरह की डेटा टाइप रिटर्न होगा। तो सम डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी रिजल्ट रहेगा वो टोटल अमाउंट में स्टोर होगा, और वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट इस डाल देता हूँ, यहाँ पे इस लिख के आ गया। देखो लाइन क्या है, बीच में हाइट आ गई, अभी जीरो जो भी था वो ओवरलैप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे लाइन हाइट को स्पेसिफाई किए थे। अब मैं दो वैल्यू डालता हूँ, समझो डिनर अमाउंट है मेरा 900 और टिप अमाउंट है 80 रुपीज। क्लिक में देखो 980 यहाँ लिख के आ गया। 900 प्लस 80 इज 980। और ये सम कब कैलकुलेट हो रहा है, जब यूजर क्लिक मी पे क्लिक करता है। जब तक यूजर क्लिक मी पे क्लिक नहीं हो करेगा तो सम कैलकुलेशन का जो इवेंट है वो ट्रिगर नहीं होगा, और जब तक वो ट्रिगर नहीं होता तो ये वैल्यू नहीं बदलेगी। दिस इज स्टेट मैनेजमेंट। मतलब हम स्टेट को मैनेज कर रहे, वेरिएबल्स की वैल्यूज को रिमेंबर कर रहे, और जब भी वैल्यू चेंज हो रही है तो हम यूआई को बदल रहे हैं। और इन दिस केस यूआई हमारा क्या बदल रहा है, सिर्फ ये वैल्यू बदल रही है 980। अब मैं इसको 800 करता हूँ और क्लिक में पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये 1700 हो गया। वैल्यू बदली, यूआई बदला। सो दिस इज नोन एज स्टेट मैनेजमेंट। कोई भी अगर डिक्लेरेटिव फ्रेमवर्क यूज करते हो, जैसे जेटपैक कंपोज हो गया, फ्लटर हो गया, रिएक्ट हो गया, तो उसमें आपको स्टेट मैनेजमेंट करना पड़ता है। रिएक्ट के अंदर हम स्टेट मैनेजमेंट करते सकते हैं रिडक्स लाइब्रेरी का यूज करके। आई होप आपने रिएक्ट के बारे में सुना होगा। इट इज बेसिकली यूज टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस। So that's it for today. We created two apps today. One was Dice app and second is Tip Calculator. And also sorry for the inconvenience. I have some technical issue from my side. किसी वजह से मेरा वो टोस्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा था, और बहुत सारे एरर शुरू शुरू में आए थे। पता नहीं मुझे क्यों आ रहे थे, बट नहीं आने चाहिए थे वो। आपके केस में नहीं आएंगे, आई होप। So basically we created two apps today. One was Dice app. So whenever user clicks on the button, द इमेज चेंजेस रैंडमली। हमने वहां पे 1 to 6 के बीच में उसको वैल्यू असाइन किए थे, और 1 to 6 के बीच में की जो भी वैल्यू थी उसमें से एक रैंडमली वो पिक कर रहा था और इमेज को चेंज कर रहा था। अगर वो 6 पिक कर रहा था तो डाइस की इमेज 6 हो रही थी, 2 पिक कर रहा था तो डाइस की इमेज 2 हो रही थी। उसके बाद हमने बनाए टिप कैलकुलेटर ऐप। यहाँ पे हमने दो एडिट टेक्स्ट लिए, उसके अंदर हम टिप्स के अमाउंट डालेंगे, डिनर का अमाउंट डालेंगे, और जब यूजर क्लिक करता है तब हमारी टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर डिस्प्ले होता है। और हमने आज देखे स्टेट मैनेजमेंट के बारे में, जो कि ये है। ये स्टेट मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको 3 4 बार अभी रिपीट करके बता दिया वो क्या होता है। और हमने कंपोजेबल्स के बारे में देखे, जो है कॉलम, टेक्स्ट फील्ड, स्पेसर, बटन, टेक्स्ट, रो और बॉक्स। और हमने इमेज कंपोजेबल के बारे में भी देखे। अगर आपको यहाँ पे इमेज डालना है तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे अब इमेज डाल देते हैं। इमेज पेंटर, इसको इंपोर्ट करता हूँ, इमेज कंपोजेबल को इंपोर्ट करता हूँ।
देखो आ गया पे इमेज। इसको चेंज करके मैं वो जो हमने पूरा पहले जो डाइस की इमेज लिए थे ना वो लोड चेंज करते हैं, उसमें चेंज करते हैं। लेट्स से डाइस 1। देखो इसको रन करते हैं, ऐप को रिस्टार्ट करता हूँ। देखो डाइस की इमेज आ गई, उसके नीचे टेक्स्ट फील्ड, क्लिक मी बटन, टोटल अमाउंट की साइज थोड़ी ज्यादा है, इसको कम करते 30 करते। सॉरी इसको नहीं बदलना है, इसको बदलना है। देखो चेंज हो गई। और एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, सिस्टम यूआई को। हट गया। शो बैकग्राउंड भी हटा देता हूँ। ओके, अब ऐप को रन करते हैं। ऐप को एक बार रिस्टार्ट करता हूँ। सी, हमारी इमेज आ गई, दो टेक्स्ट फील्ड आ गए, क्लिक मी आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। अब क्लिक मी के जो टेक्स्ट है वो बदलते हैं हम। उसको लिखते हैं, उसमें लिखते हैं हम टोटल, कैलकुलेट टोटल, टोटल। देखो कैलकुलेट टोटल आ गया। समझो आप रेस्टोरेंट में गए, आपका बिल हुआ 500 डिनर का, और आपको वेटर को 50 रुपए टिप करना है। हो गया 550 आपका टोटल बिल। So this was app that we created today, tip calculator, and before that we created dice app. So sorry for the inconveniences that we faced earlier at the starting beginning of this session. I hope won't face those same errors, and thank you for joining today. तो कल हमारा एंड्रॉइड वर्कशॉप का लास्ट दिन है। कल हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। जो आज क्रिएट करने वाले थे एक्चुअली हमें कल क्रिएट करना था, तो सो मैंने गलती से बोल दिया। आज हमें टिप कैलकुलेटर बनाना था। और कल हम और मटेरियल थीमिंग के बारे में भी जानेंगे, और मटेरियल डिजाइन 3 के बारे में भी जानेंगे। और उसके अलावा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को कल हम स्टडी करेंगे, गो थ्रू करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको इश्यू हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के रिलेटेड, एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करने के रिलेटेड, ऐप को डेवलप करने के रिलेटेड, getting if you have any issue trouble getting started with Android development, feel free to ask me on WhatsApp. My email ID is, I will ping that on WhatsApp. And if you have any error regarding Kotlin, Jetpack Compose, or Android development right now, you can also text it in the chat box. And I hope you have a very good night. See you tomorrow.